اور پہلی بات میں یہ بالکل اپنا کانسیپٹ میں کلیئر کر دوں، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں بھی آپ کو ہنساؤں گا کھلاؤں گا تو اس کی توقع آپ مجھ سے نہ رکھیں، اس لیے کہ اگر یہاں بھی آپ کو ہنسایا جائے اور آپ کے سامنے چٹکلے بازیاں کی جائیں تو پھر جلسے اور میلاد مصطفیٰ اور کپل شرما کے شو میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ لیکن امام شافعی فرماتے ہیں کہ حضور کی میلاد میں آپ فرماتے بے ساختہ کھلکھلا کے ہنسنا، امام شافعی نے لکھا ہے کہ زنا سے بدترین گناہ ہے۔ ذرا توجہ کریں، دل کو تھام کر کے بیٹھیں، اس لیے کہ یہاں آپ آئے ہیں اپنی آخرت سنوارنے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں بھی اگر لطیفہ بازی میں آپ کے سامنے کروں تو جلسے کا مقصد ہی فوت ہو۔ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ اس نبی ہاشمی کی بارگاہ ہمیں اور آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، جن کے چہرے وضحا پر جب میرے امام کی نظر پڑتی ہے تو آپ قلم سے کہتے ہیں لکھ، وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اس نبی ہاشمی کی بارگاہ ہمیں اور آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، جن کے چہرے وضحا پر جب میرے امام عشق و محبت کی نظر پڑتی ہے تو آپ قلم سے لکھتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب و تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اس حضور کی بارگاہ میں ہمیں اور آپ کو درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا ہے، جن کے گنبد خضرا پر جب میرے امام کی نظر پڑتی ہے تو آپ قلم سے کہتے ہیں لکھ، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اس نبی کی بارگاہ ہمیں اور آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، جن کے روضہ مقدس پر جب میرے امام کی نظر پڑتی ہے تو آپ قلم سے کہتے ہیں لکھ، با خدا خدا کا یہی ہے در، کہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ ذرا آپ توجہ کریں، کس نبی کی بارگاہ ہمیں اور آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں اور اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں۔ دیکھیں، آپ چاہے درجن پوروا کے رہنے والے مسلمان ہو یا آپ ضلع بہرائچ میں کسی خطے میں رہنے والے مسلمان ہوں، آپ دیکھیں پورے اتر پردیش میں تقریباً 70 سے زائد ڈسٹرکٹ ہیں، پورے ہندوستان میں تقریباً 28 سے زیادہ اسٹیٹ ہیں، پوری دنیا میں تقریباً 200 سے زیادہ کنٹریز ہیں، 200 سے زیادہ ملک ہیں۔ چاہے جس ملک میں رہنے والا مسلمان ہو، چاہے جس علاقے میں رہنے والا مسلمان ہو، وہ چاہے ہم اور آپ ہو، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نیت یہی کرتے ہیں، متوجہن الی جہت الکعبۃ الشریفہ، یعنی نیت میں ہم یہ کہتے ہیں وہ میرا رب کعبہ شریف کے۔ ذرا ایک سیکنڈ کا آپ وقت نکالیں، توجہ رکھیں، ہم خانہ کعبہ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتے ہیں اور اس کا جواب لیتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کہ اے خانہ کعبہ تیرے حتیم کو سلام، اے خانہ کعبہ تیرے در و دیوار کو سلام، اے خانہ کعبہ تیری عزت کو سلام، اے خانہ کعبہ تیری حرمت کو سلام۔ ذرا ہمیں ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دے کہ پوری دنیا کے مسلمان تیری طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن کیا کوئی ایسی ذات ہے جس کی طرف تو جھکتا ہو؟ کیا کوئی ایسی ذات ہے جس کا تو سجدہ کرتا ہو؟ تو ذرا توجہ کرے، خانہ کعبہ جواب دیتا ہے سنو، پوری دنیا کے مسلمان میری طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن میں اگر کسی کے آگے جھکتا ہوں تو وہ آمنہ کا لال ہے، وہ امت کا غمخوار ہے۔ میرا امام کہتا ہے جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر زندہ باد۔ آئے اسی نبی ہاشمی کی بارگاہ میں، توجہ ہے، جن کی بارگاہ میں سید الملائکہ حضرت جبریل امین حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میں نے ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ یعنی جتنی دشائیں ہیں سب کو دیکھا ہے، اے اللہ کے نبی میں نے شمال و جنوب مغرب و مشرق کو دیکھا ہے۔ حضور کائنات کا جائزہ لینے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ سے زیادہ خوبصورت نہ اللہ نے کسی کو بنایا ہے اور نہ قیامت تک خدا کسی کو بنائے گا۔ آپ سے زیادہ خوبصورت آپ سے پہلے نہ کوئی آیا ہے اور نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ اس حدیث کی ترجمانی جب میرے شیخ طریقت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدا۔
आए उसी नबी हाशमी की बारगाह में, मर्द हजरात से मैं मुल्तमिस हूं कि बुलंद आवाज से, और मैं अपनी बहनों से, माओं से गुजारिश करता हूं कि पस्त आवाज से हुजूर की बारगाह में मिल करके दुरूद शरीफ का नज़ारा पेश कर ले। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, बड़ा खूबसूरत आज का ये प्रोग्राम है और बड़ी खूबसूरती के साथ ये प्रोग्राम कामयाबियों की मंजिलों की तरफ रवा दवा है। गाय के मुबारकबाद है डॉक्टर शब्बीर साहब, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, उनकी जिंदगी में बरकतें अता फरमाए, उनके अहलो अयाल में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। उन्होंने बच्चों के अकीके के मौके पर इस प्रोग्राम को रचाया, सजाया, बसाया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह बच्चों को दीनी और दुनियावी और उखरवी तमाम भलाइयों से अल्लाह रब्बुल इज्जत उन बच्चों को सरफराज फरमाए। देखिए बड़ी खूबसूरत आज की ये महफिल है, बड़ी अच्छी निकाबात। रफीक मोहतरम कारी आरिफ साहब किबला फरमा रहे हैं, उससे पेशतर आपने कारी नसीम साहब किबला को सुना है, आपके इमाम साहब किबला मौलाना अयूब साहब किबला तशरीफ रखते हैं, मुझसे पेशतर आपने खिताब मौलाना मुस्लिम साहब किबला से भी समाअत किया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा ले। और मेरे बहुत सारे अहबाब और तशरीफ रखते हैं, वक्त की तंगदामनी और तंगदस्ती है, वरना इन सबों की बारगाह में मैं इनका नाम लेके सलाम अर्ज करता। बस एक शेर मजमूई तौर पर अर्ज है कि शिकारे माह के में तस्कीरे आफ्ताब करो और किसे मैं तर्क करो, किसका इंतखाब करो, मैं किसका नाम लूं, किसको छोड़ दूं, जो जर्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है। और ये महफिले मैं है, जामो चम नहीं, यहाँ कोई किसी से कम नहीं। बड़ी खूबसूरत आपकी समाते हैं, पहली मर्तबे आपके दरमियान हाजिर हुआ। रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमाए कराम हम सब जलसों में शिरकत करते हैं। कुछ ही जलसे ऐसे होते हैं जो याद रह जाते हैं, लेकिन आज का आपका जलसा मुझे इस वजह से याद रहेगा कि आज इस जलसे में चाय के साथ में गुटके भी तकसीम किए गए हैं। पहला ऐसा तरीका देखा हूं मैं, पहली ऐसी नौयत देखी है, इससे बचना चाहिए। समझ रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। अगर तकसीमी करना है तो उलमा को नजराने तकसीम कर दो, गुटखा खिलाओगे बेचारे सब के सब कैंसर के मरीज हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? बड़ी खूबसूरत आज की ये महफिल है, तवज्जो आप रखें, देखें गौर से मेरी गुफ्तगू को सुने। इंशाअल्लाह कुछ कीमती बातें मैं आपके गोश गुजार करके रुखसत हो जाऊंगा। तवज्जो रखें और इस अकीदे से आप यहाँ बैठे कि आप बैठे हैं, आप पर अल्लाह की तरफ से रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। आप बैठे हैं, आपकी तरफ से अल्लाह की तरफ से आप पर अनवार व तजल्लियात की बरसात हो रही है। देखिए ये हुजूर का मीलाद है और इमाम हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जहां एक मरतबे हुजूर का मीलाद मनाया जाता है, पूरा साल अल्लाह उस जगह से आजाब को उठा लेता है। आगे आप फरमाते हैं कि जहां पर एक मरतबे हुजूर का मीलाद मनाया जाता है, पूरा साल अल्लाह उस जगह पर अनवार व तजल्लियात की बरसात फरमाता है। आगे आप लिखते हैं कि जहां एक मरतबे हुजूर का मीलाद मना लिया जाए, जितने लोग उस मीलाद में शरीक हो जाए, पूरा साल अल्लाह उनकी उम्र में और उनके रिस्क में बेपनाह बरकतें। तो इस अकीदे से आप बैठे। और पहली बात मैं ये बिल्कुल अपना कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूं, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं भी आपको हंसाऊंगा खिलाऊंगा तो इसकी तवक्को आप मुझसे ना रखें। इसलिए कि अगर यहाँ भी आपको हंसाया जाए और आपके सामने चुटकुलेबाजियां की जाए तो फिर जलसे और मिलादे मुस्तफा और कपिल शर्मा के शो में कोई फर्क नहीं रहेगा। देखिए इमाम शाफई फरमाते हैं कि हुजूर की मिलाद में आप फरमाते बेसाख्ता खिलखिला के हंसना। इमाम शाफई ने लिखा है कि जिना से बदतरीन गुनाह है। जरा तवज्जो करें, दिल को थाम करके बैठे, इसलिए कि यहाँ आप आए हैं अपनी आखिरत संवारने के लिए आए हैं। यहाँ भी अगर लतीफाबाजी में आपके सामने करूं तो जलसे का मकसद ही फौत हो जाएगा। इस अकीदे से आप बैठे कि इस जलसे को हुजूर गौसे आजम भी मुलाहिजा कर रहे हैं और अल्लाह के नबी आखिरुज़्ज़मा भी मुलाहिजा कर रहे हैं। इस अकीदे से आप बैठे कि हुजूर भी आपको देख रहे हैं और हुजूर गौसे आजम भी आपको देख रहे हैं। इस पर एक मिसाल मैं आपके सामने देता हूं और उसके बाद आगे बढ़ता हूं। चले आप बगदाद शरीफ की सरजमीन पे तवज्जो रखें, मेरी माँ और बहनें भी तवज्जो कर लें। बगदाद शरीफ की सरजमीन है, हुजूर गौसे आजम की एक मुरीदा है। जब हुजूर गौसे आजम बाहयात थे, आपका जमाने जाहिरी था, वो औरत हुजूर गौसे आजम से बैत हुई थी। एक मरतबे उसकी बेटी घर के दरवाजे पर खड़ी है, उस औरत के शौहर का इंतकाल हो चुका है। उसकी बेटी ने ये सुना है कि बाहर कोई निदा दे रहा है, बाहर कोई आवाज दे रहा है कि आज की रात में जो बगदाद का बादशाह है
जो बगदाद का अमीरो कबीर शख्स है, जो बगदाद का सरदार है, आज उसके महल पर हुजूर का मीलाद मनाया जाएगा। जब उसकी बेटी ने ये सुना है, बड़ी खुशी के साथ अपनी माँ के पास आई है और आने के बाद कहती है, माँ हमने ये ऐलान सुना है कि आज बादशाह के महल पर हुजूर का मीलाद मनाया जाएगा। माँ ने कहा, बेटी हमें क्या करना चाहिए? तो बेटी ने कहा, सुनो मेरी माँ, जिस नबी का मीलाद आज मनाया जाएगा, हम भी उस नबी का कलमा पढ़ते हैं, हम भी उस नबी की उम्मत में है। मैं चाहती ये हूँ कि हम लोग नया लिबास पहने और नया लिबास पहन करके बादशाह के महल पर जाएं और जाकर के हुजूर का मीलाद सुने। जरा तवज्जो करें आप, जब दोनों चली है और बादशाह के महल पर पहुंची है, तो महल पर जो बवाब होते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जो सिपाही होते हैं, उन्होंने रोक दिया है। और रोकने के बाद सिपाहियों ने कहा, कहाँ का इरादा है? तो दोनों ने एक समान होकर के कहा है, हम बादशाह के महल पर हुजूर का मीलाद सुनने के लिए आए हैं। तो सिपाहियों ने कहा, सुनो, यहाँ से उन लोगों को आने की इजाजत है जिनको बादशाह ने दावतनामा दे के बुलाया हो, जिनको बादशाह ने इनविटेशन कार्ड दे के बुलाया हो। अगर दावतनामा है तो अंदर जाने की इजाजत है, अगर दावतनामा नहीं है तो तुम्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं है। तवज्जो है? वो जो भाई वहाँ सोफे पे विराजमान है, डिनर करके वहाँ बैठे हुए, वो भी तवज्जो कर लें, पैर आराम से रख करके नीचे रख के बैठ जाए, हुजूर की मिलाद में बैठे हैं। आप मुझे देखे ना देखे, मैं आपको देख रहा हूँ, इसलिए कि आप अकेली आंख से देखते हैं, मैं चश्मा लगा के देखता हूँ। तवज्जो है? तवज्जो मेरी तरफ रखें, बड़ी कीमती बात है नौजवानों के लिए, इंशाल्लाह बड़ा कीमती पैगाम मैं देकर के जाऊंगा। तवज्जो है? कारी आरिफ साहब किबला तवज्जो करें। सिपाहियों ने कहा, सुनो, अगर दावतनामा है तो अंदर जाओ, दावतनामा नहीं है तो अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ऐलान तुमने सुन लिया और मुंह उठा करके चली आई। सुनो, यहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़े बड़े रईस आएंगे, अपने वक्त के बड़े बड़े जमींदार आएंगे, अपने वक्त के बड़े बड़े ओहदेदार आएंगे। अगर दावतनामा है तो अंदर जाओ, दावतनामा नहीं है तो यहीं से वापस जाओ। दोनों ने कहा, हमारे पास दावतनामा तो नहीं है, लेकिन क्या हमारे लिए ये काफी नहीं है कि जिस नबी का मीलाद आज बादशाह के महल पे मनाया जाएगा, हम भी उस नबी का कलमा पढ़ते हैं, हम उस नबी की उम्मत में हैं, उस नबी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। तो सिपाहियों ने कहा, सुनो, हमें ये हुक्म दिया गया है, दावतनामा है तो अंदर जाएं, दावतनामा नहीं है तो बाहर जाएं। दोनों की आंख में आंसू है, बेटी कतारों कतार रोई है, उसकी आंख से आंसू निकले हैं। माँ ने जब अपनी बेटी के चेहरे को देखा है, माँ ने तसल्ली देते हुए कहा, मेरी बेटी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, चलो हम यहाँ से वापस चलते हैं। इसलिए कि हुजूर का मीलाद सिर्फ इस बादशाह वक्त के महल तक महदूद नहीं है, जितने हुजूर इस बादशाह के नबी है उतने ही हुजूर हमारे नबी है। अगर बादशाह को हुजूर के मीलाद को मनाने का हक है तो हमें भी हुजूर के मीलाद को मनाने का हक है। बेटी ने कहा, मेरी माँ हम करेंगे क्या? तो माँ ने कहा, सुनो, हम अपने घर वापस चलते हैं और हम हुजूर का मीलाद मनाते हैं। बेटी ने कहा, मेरी माँ, हमारे और घर में हम दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं है, हम हुजूर का मीलाद किस तरह मनाएंगे? तो माँ ने कहा, सुनो मेरी बेटी, नबी की जो नाते तुम्हें याद है वो तुम खड़ी होकर के पढ़ना और मैं बैठ करके सुनूंगी। नबी के जो वाकयात तुम्हें याद है वो तुम बयान करना, मैं बैठ करके सुनूंगी। जब तुम थक जाओगी, हुजूर के जो वाकयात मुझे याद है, हुजूर के जो मौजिज़ात मुझे याद है, हुजूर की जो सीरत मुझे याद है, वो मैं खड़ी होकर के बयान करूंगी, तुम बैठ करके सुनना। और यकीन फरमाते दोनों घर वापस आई है, बेटी खड़ी हुई है और हुजूर की मिलाद को पढ़ना शुरू किया है, हुजूर की नाते पढ़नी शुरू की है, हुजूर की सीरत को बयान करना शुरू किया है। जब बेटी थक गई है, माँ खड़ी हुई है और उसने हुजूर के मौजिज़ात को बयान करना शुरू किया है, हुजूर के बचपन के वाकयात को, हुजूर की सीरत को, हुजूर की हिजरत को बयान करना शुरू किया है। इतने में सहरी का वक्त हो गया है। माँ ने बेटी से कहा, सुनो, आज की जो शब है, इस शब की सुबह सादिक का जो वक्त है वो हुजूर की विलादत का वक्त है। और मैंने ये सुना है और मैंने ये पढ़ा है कि अल्लाह के नबी हर साल अपनी विलादत के दिन रोजा माँ ने कहा, मेरी बेटी सुनो, जाओ ताजा पानी लेकर के आओ, हम सहरी करते हैं, उसके बाद ताजा वजू करते हैं, सहरी करने के बाद फजर की नमाज पढ़ते हैं, इसलिए कि हमें कल का रोजा रखना है। जब बेटी चली है, तवज्जो रखे, अब जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं जरा दिल को थाम करके रखे और इसे आप यहां से नहीं बल्कि यहां के कानों से सुने, तवज्जो रखे। जब बेटी कमरे से बाहर आई है, जैसे ही वो बरामदे में आई है, उसके बाद जैसे ही आंगन में पहुंची है, उसके हाथ में जो बर्तन था उसने
ایک چیخ ماری ہے، وہ برتن چھوٹ کر کے زمین پہ گر گیا ہے۔ ماں نے اندر سے اپنی بیٹی کو پکار کے آواز دیا ہے، میری بیٹی آخر تو روئی کیوں ہے، آخر تو چیخی کیوں ہے، آخر تو چلائی کیوں ہے، آخر تو نے ایسا کیا دیکھا ہے جس کو دیکھ کر کے تو چیخ پڑی ہے؟ تو بیٹی نے کہا، میری ماں میں بتانے کی طاقت نہیں رکھتی ہوں، آپ کمرے سے باہر آئیں اور آ کر کے آپ خود بلائیں۔ ماں باہر آئی ہے، برآمدے میں پہنچی ہے، اور جیسے ہی وہ آنگن میں آئی ہے اس نے دیکھا ہے اس کی بھی چیخ نکل گئی ہے۔ اس نے دیکھا ہے کہ اس کے آنگن میں بڑے پیر دستگیر روشن سیدنا حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے، اور حضور غوث اعظم اس کے آنگن میں ہے۔ اور آنے کے بعد حضور غوث اعظم نے اس کی سر کی مٹی کو اٹھایا ہے اور اپنی آنکھ سے لگایا ہے، اس کی چوکھٹ کو چوما ہے، اس کے در و دیوار کو چوما ہے۔ وہ عورت حضور غوث اعظم کی مریدہ تھی، عرض کرتی ہے، میرے پیر و مرشد آپ مجھ جیسے غریب کے آنگن میں آئے ہیں جسے بادشاہ کے محل میں جانے کی بھی اجازت نہیں ہے، جسے بادشاہ نے اپنے محل میں جانے کی اجازت بھی نہیں دی ہے، آپ مجھ جیسے غریب کے آنگن میں آئے ہیں، اور صرف آئے نہیں ہیں، آپ در و دیوار کو بھی چوم رہے ہیں، میری چوکھٹ کو بھی چوم رہے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ذرا توجہ کریں، حضور غوث اعظم کا جواب سن لیں اور دیکھیں۔ ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، اگر دو لوگ بھی ہوں اور محبت سے منائیں تو حضور اپنا میلاد سننے کے لیے آتے ہیں۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، سن اے میری مریدہ سن، جس نبی کا میلاد تو اور تیری بیٹی مل کر کے بند کمرے میں بیٹھ کے منا رہی تھی، وہی مدینے والے آقا اپنا ذکر سننے کے لیے تیرے آنگن میں آئے تھے، اور حضور آئے ہیں، تیرے در و دیوار مہک گئے ہیں، حضور آئے ہیں، تیرے گھر کی مٹی منور ہو گئی ہے، حضور آئے ہیں، تیرا گھر منور ہو گیا ہے۔ اسی کو میرا امام کہتا ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن غوث الورا حضرت علامہ ارشد رضا ثقافی، نعرہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس اعتقاد سے بیٹھے کہ تعداد کتنی بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، اگر محبت سے حضور کو یاد کرتے ہیں تو حضور بھی آتے ہیں اور حضور غوث اعظم بھی آتے ہیں۔ ذرا توجہ کریں، جب بھی حضور کا میلاد سجایا کریں تو دل سے دعا کیا کریں اور کہا کریں، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ حضور کا میلاد ہے، حضور غوث اعظم کے نام سے اس جلسے کو نسبت ہے۔ تو اس اعتقاد سے بیٹھے کہ اس کو حضور غوث اعظم بھی ملاحظہ کر رہے ہیں اور اس کو اللہ کے نبی بھی ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اور جب حضور بیٹھ تقریر فرماتے تھے، صحابہ جب حضور کے سامنے بیٹھتے تھے تو محدثین فرماتے اس طرح بیٹھتے تھے کہ جیسے لگتا تھا ان کے جسموں سے روحیں پرواز کر گئی ہیں۔ اگر کوئی اس طرح بیٹھتے تھے کہ پرندے آ کر کے ان کے کاندھوں پر بیٹھ جاتے تھے تو کافی دیر تک پرندے اٹھتے بھی نہیں تھے، اس لیے کہ وہ اپنے جسم کو حرکت بھی نہیں دیتے تھے۔ اس طرح وہ حضور جب بیان کرتے تھے اور حضور جب تقریر کرتے تھے، حضور جب نصیحت کرتے تھے، اس طرح وہ حضور کی محفل اور حضور کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ اور حضور غوث اعظم جب تقریر فرماتے تھے تو مورخین فرماتے ہیں جب آپ کا خطاب ختم ہوتا تھا تو کئی لاشیں آپ کے مجمع سے نکلا کرتی تھی، یعنی اس طرح آپ خطاب کرتے تھے کہ آپ کے خطاب کو سن کر کے لوگوں کی دھڑکنیں رک جایا کرتی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کی محفل میں آپ بیٹھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں آپ بیٹھے تو دل سے گفتگو کو سنیں۔ دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں کچھ خراج عقیدت پیش کر دوں اور اس کے بعد اپنے اصل موضوع پہ آتا ہوں۔ توجہ ہے؟ اگر توجہ ہے تو مل کے بولے ایک مرتبہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مل کے بولے یا رسول اللہ، ایک مرتبہ بولے یا غوث اعظم المدد۔ توجہ ہے، آپ کی گفتگو کو سنیں میری۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں جو منقبت لکھی ہے ان کی شان میں مشہور زمانہ منقبت، میں چاہتا ہوں بس اس کے دو تین شعر پڑھ دوں اور اس کی تھوڑی سی تشریح آپ سن لیں، اور اس کے بعد میں اپنے اصل گفتگو پر، اصل موضوع پہ گفتگو کر کے اپنے خطاب کو سمیٹتا ہوں۔ توجہ ہے؟ دیکھیں کون اعلیٰ حضرت اور کتنی محبت آپ فرماتے حضور غوث اعظم سے۔ 4 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے اپنے والد محترم سے پوچھا تھا، اے میرے والد محترم ابا جان یہ بتائیں کہ بغداد شریف کدھر ہے؟ تو آپ کے والد محترم نے کہا تھا بیٹا سنو، یہ کعبہ ہے اور اس کے جسٹ بغل میں مدینہ المنورہ ہے اور اس کے بالکل بغل میں بغداد شریف ہے۔ اعلیٰ حضرت نے
4 साल की उम्र में पूछा था कि बगदाद किधर है। 4 साल की उम्र से लेकर के जब तक आपका हयात रहे कभी आपने अपने पैर को बगदाद शरीफ की सरजमीन की तरफ नहीं फैलाया है, अपने कदमों को आपने बगदाद की तरफ नहीं किया है। जब बंदा इतना बाअदब होता है तब वो अहमद रजा बनता है और वो कहता है तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। देख आला हज़रत फरमाते हैं तवज्जो है, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। आगे आप फरमाते हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, हुजूर के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। आपसे पूछा गया अहमद रजा हुजूर गौसे आजम का मर्तबा क्या है, तो आला हज़रत फरमाते हैं सुनो, हुजूर गौसे आजम का मर्तबा अगर समझना है, उनकी अजमत को अगर जानना है तो उस वली से ना पूछो जो शुक्र की मंजिल पर पहुंच गया। तवज्जो रखें, आप फरमाते हैं इसलिए कि शुक्र विलायत में उस मंजिल का नाम है। जब उस मंजिल पर कोई वली पहुंच जाता है तो वो अल्लाह की याद में इस तरह से खो जाता है कि ना उसे अपनी खबर रहती है ना बेगाने की खबर रहती है। वो अपने आप को भी भूल जाता है, वो दुनिया को भी भूल जाता है, अपने आसपास के हालात को भी भूल जाता है। आला हज़रत फरमाते सुनो, अगर गौसे आजम का मर्तबा पूछना है तो उस वली से ना पूछो तो शुक्र की मंजिल पर पहुंच गया। जब उसे अपनी खबर नहीं है तो वो गौसे आजम का मर्तबा क्या बयान करेगा। पूछा गया अहमद रजा हुजूर गौसे आजम का मर्तबा पूछे किससे, तो आला हज़रत फरमाते हैं सुनो, अगर गौसे आजम का मर्तबा पूछना है तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से पूछो। हजरत खिज़र से पूछा गया जरा आप बताएं गौसे आजम का मर्तबा क्या है, तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सुनो, उम्मत मुहम्मदिया में अब्दुल कादिर से पहले न उन जैसा वली पैदा हुआ है और न क़यामत तक पैदा होगा। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज़र के होश से पूछे कोई। आगे आप फरमाते हैं क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। एक मिसाल आप इस पर सुन ले और इस शेर को आप समझ जाएंगे। आपने नाम सुना होगा मुजाहिद आजादी और फातह बैतुल मुकद्दस और बैतुल मुकद्दस को आजाद करने वाले हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी। आपने नाम सुना है। ये नौजवान बैठे अभी इनसे फिल्म स्टारों के बारे में पूछ लिया जाए तो बिल्कुल तरतीब से गिनाते हुए नजर आएंगे। पूछ लिया जाए बताओ इन साल 2025 में कौन सी टीम आईपीएल में चैंपियन बनी है, वो आपको गिनाते नजर आ जाएंगे। पूछ लिया जाए बताओ बॉलीवुड में कौन सी मूवी हिट हुई है, कौन सी फ्लॉप हुई है, वो बताते हुए नजर आ जाएंगे। पूछ लिया जाए बताओ शाहरुख खान कहाँ रहता है, बताते नजर आ जाएंगे। पूछ लिया जाए बताओ बॉलीवुड के हीरो कहाँ रहते हैं, कब पैदा हुए हैं, कहाँ मरे हैं, कहाँ उनका घर है, सब आपको गिनाते नजर आ जाएंगे। लेकिन अगर इनसे इस्लाम के बारे में पूछ लिया जाए तो खामोशी का मुजाहरा करेंगे। इसी को डॉक्टर इकबाल ने कहा था पुष्कन उड़ गए बाकी जो बचे पुतगर हैं, उम्मती पाई से रुसवाई पैगंबर है, हर कोई मस्ती में ज़ोक़े तनासानी है, तुम मुसलमान हो क्या अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फक्र है नहीं दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। और आखिर में डॉक्टर इकबाल ने कहा था सुनो वो मुअज़्ज़ज़ है ज़माने में मुसलमान होकर तुम खार हुए तारीख़े कुरान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक इस्लाम के मुजाहिदीन इस्लाम के हीरो के बारे में पूछा जाए तो नहीं मालूम। सुने सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है, इन्होंने बैतुल मुकद्दस को फतेह किया था। किसको? बैतुल मुकद्दस को। फलस्तीन जानते हैं, बैतुल मुकद्दस जो मुसलमानों का किबला अव्वल है, यानी पहले बैतुल मुकद्दस की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ी जाती थी। ये बाद में हुजूर की ख्वाहिश पर अल्लाह ने किबला को तब्दील किया और अब हम खाने काबा की तरफ मुंह को करके नमाज पढ़ते हैं। ये हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं। एक मिसाल आपको दे दूं आप समझ जाएंगे, ज़हन में आ गई ये बात तो सुन लें कि हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है। तवज्जो है और मेरे नौजवान भी तवज्जो कर लें, ये सलाहुद्दीन अय्यूबी है। जरा गौर कर लें, इनके जमाने में मुसलमानों का एक काफिला मिस्र से निकला था हज के लिए और वो रास्ते में था। एक यहूदी कमांडर ने मुसलमानों के काफिले को रोका और रोकने के बाद उनको लूटा, उनको मारा, उनको परेशान किया और पूछा बताओ कहाँ जा रहे हो। तो मुसलमानों ने कहा सुनो हम अपने नबी के रोजे का दीदार करने जा रहे हैं।
तो उस यहूदी ने मजाक में कहा था, सुनो ऐना मोहम्मद को उदऊ यंसुरुकुम, उसने कहा था सुनो तुम अपने नबी मोहम्मद के पास जा रहे हो, बुलाओ उनको, वो तुम्हारी मदद करें, बुलाओ उनको, वो तुम्हें छुड़ाएं। और यकीन फरमाते हैं जब ये बात हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुंची थी, उसने कसम खाई थी, उसने कहा था ऐ अल्लाह उस वक्त तक सलाहुद्दीन को मौत ना देना जब तक अपने हाथ से उस यहूदी की गर्दन को ना काट दूं। तवज्जो करें, ये सलाहुद्दीन अय्यूबी है। आखिर में एक वक्त आया है जब उस यहूदी को गिरफ्तार करके कमांडर को हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने लाया गया है। उसके साथ में जितने लोग थे सबको हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने माफ कर दिया है, कहा जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूं। लेकिन जब उसके सामने हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी पहुंचे हैं जिसने हुजूर का मजाक उड़ाया था और कहा था बुलाओ अपने नबी मोहम्मद को, वो तुम्हारी मदद करें, बुलाओ अपने नबी को, वो तुमको छुड़ाए, तो हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसकी आंख में आंख डाला और आपने कहा था सुन तूने ही ये कहा था ना कि बुलाओ अपने नबी को और तुम्हारी मदद करे, बुलाओ अपने नबी मोहम्मद को, वो मुसलमानों की मदद करे। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा सुन तुझ जैसे कुत्ते से निपटने के लिए मेरे नबी को आने की जरूरत नहीं है, उनका अदना गुलाम सलाहुद्दीन काफी है। और आपने तलवार निकाली थी और उस यहूदी की गर्दन को काटते हुए आपने कोई अपनी जबान में कहा था सुन की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, एक चीज क्या है वो हो कलम तेरे हैं। गोया सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा सुन तो जान मांगेगा तो जान देंगे, जो माल मांगेगा तो माल देंगे, मगर हमसे ना ये हो सकेगा भी नबी का जाहो जलाल। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। और ये कौन है हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी? ये हुजूर गौसे आजम के मुरीद हैं, पक्के कादरी हैं, पक्के सच्चे हुजूर गौसे आजम के मुरीद हैं। तवज्जो करें, जो शेर मैंने पढ़ा उसकी तशरीह आप सुन लें। तवज्जो है, पूरी जिंदगी हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी जंग में रहे, पूरी जिंदगी आप कुफ्फारों मुशरिकीन और यहूद और नसारा से लड़ते रहे। जब आपका आखिरी वक्त था और बिस्तरे मर्द पे, जब आप बिस्तरे मर्ज पे थे तो आपसे पूछा गया ऐ सलाहुद्दीन ये बताओ पूरी जिंदगी तुम जंग में रहे लेकिन कभी कोई तलवार तुम्हारी गर्दन को ना काट सके, न जाने कितने लोगों को तुमने अपनी तलवार से काट दिया है लेकिन कोई तलवार तुम्हें तकलीफ न पहुंचा सके। तो हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा सुनो दुनिया की कोई तलवार सलाहुद्दीन की गर्दन को टच भी नहीं कर सकती है। पूछा गया क्यों? तो हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं सुनो बचपन का जमाना था, वो कहते हैं मेरे वालिद मोहतरम मुझे लेकर के हुजूर गौसे आजम की बारगाह में गए थे और उन्होंने कहा था ऐ बड़े पीर दस्तगीर आप मेरे बेटे के लिए दुआ कर दे। हुजूर गौसे आजम ने मुझे अपने करीब बुलाया था। जरा तवज्जो करें, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं लोगों आम तौर से अगर हम किसी को दुआ देते हैं तो उसके सर पे हाथ रख के दुआ देते हैं, अगर किसी को दुआ देते हैं तो उसकी पीठ पे हाथ रख के दुआ देते हैं। लेकिन गौसे आजम ने जब मुझे दुआ दी थी तो उन्होंने हाथ मेरे सर पे नहीं रखा था, मेरी पीठ पे नहीं रखा था, बल्कि मेरी गर्दन पे रखा था और गर्दन पे रख के दुआ दी थी। ये गौसे आजम के हाथ की बरकतें हैं कि सलाहुद्दीन की गर्दन को कोई तलवार टच न कर सके। इसी को आला हजरत फरमाते हैं क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। सलाहुद्दीन अय्यूबी है। लेकिन एक बात आप और सुन लीजिए, मेरी माए बहनें बैठी हैं, तवज्जो करें। यही सलाहुद्दीन अय्यूबी है जब इन्होंने बैतुल मुकद्दस को फतेह किया था, उस वक्त यहूदियों ने कहा था सलाहुद्दीन आज तो तुमने इसको फतेह कर लिया है, आज तो तुमने छोड़ा लिया है, लेकिन एक वक्त आएगा जब हम इसको फिर मुसलमानों से छीन लेंगे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था सुनो एक सलाहुद्दीन अय्यूबी चला जाएगा, अल्लाह हजारों सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर देगा। तो यहूदियों ने कहा था सलाहुद्दीन ये तारीख इस बात पर शाहिद रहेगी और इस बात पर हिस्ट्री गवाह रहेगी कि तुम्हारे बाद कायनात में कोई और सलाहुद्दीन नहीं पैदा होगा, इसलिए कि सलाहुद्दीन तुम वो हो जिसके नाम से आज भी यहूद और नसारा कांपते हैं। यहूदियों ने कहा था सुनो सलाहुद्दीन तुम्हारे बाद कोई और सलाहुद्दीन कायनात में नहीं आएगा। सलाहुद्दीन ने कहा था क्यों? तो यहूदियों ने कहा था सुनो हम तुम्हारी कौम की बच्चियों को इस तरह बना देंगे कि वो जिंदगी में कभी दूसरा सलाहुद्दीन पैदा नहीं करेगा।
सुभान आप देखें बच्चे रोजाना मुसलमानों के घर में पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, लेकिन देखें कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों नहीं पैदा होता है। गौर करें, आज के माँ बाप हैं और सलाहुद्दीन के माँ बाप को आप देख लें, तवज्जो है। एक मिसाल आपको दे दूं, आप समझ जाएंगे। सलाहुद्दीन के वालिद हैं हजरत नजमुद्दीन अय्यूबी। आपकी उम्र आधे से ज्यादा हो चुकी है, यानी आधी उम्र गुजर चुकी है, लेकिन आपने निकाह नहीं किया है। जब भी आपसे पूछा जाता निकाह क्यों नहीं करते हो, तो कहते मुझे आज तक ऐसी लड़की मिली ही नहीं है जिसको मैं अपनी शरीक हयात बना सकूं। पूछा गया आपको क्या चाहिए एक लड़की के अंदर, आप आखिर चाहते क्या हैं, आपकी शरीक हयात कैसी होना चाहिए। तो सलाहुद्दीन ने कहा सुनो, मैं ये चाहता हूं कि जो औरत मेरे निकाह में आए, जो लड़की मेरे निकाह में आए, वो मेरा हाथ पकड़ करके मुझे जन्नत तक ले करके जाए और अल्लाह उससे मुझे ऐसी औलाद अता करे जो कल बैतुल मुकद्दस को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे पूरी जिंदगी कोई ऐसी लड़की मिली ही नहीं है। एक मर्तबे आप अपने पीरो मुर्शिद के पास बैठे हुए थे, इतने में एक लड़की आई और पर्दे के बाहर से उसने सलाम किया। आपके पीरो मुर्शिद ने जवाब दिया। पीरो मुर्शिद फरमाते हैं बेटी जरा ये बताओ, कल जो तुम्हारे लिए रिश्ता मैंने भेजा था आखिर तुमने इनकार क्यों कर दिया है। तो लड़की ने कहा वो रिश्ता मुझे पसंद नहीं है। आपके पीरो मुर्शिद कहते हैं बेटी आखिर कमी क्या है। लड़का जो है वो पैसे के एतबार से बड़ा मजबूत है, धन दौलत के एतबार से बड़ा मौजूद है, शोहरत के एतबार से भी बड़ा मजबूत है, आखिर तुमने इनकार क्यों किया है। तो पर्दे के पीछे से लड़की ने कहा ए मेरे पीरो मुर्शिद, मुझे अपने लिए ऐसा शौहर चाहिए जो मेरा हाथ पकड़ करके मुझे जन्नत तक लेकर के जाए और अल्लाह उससे मुझे ऐसा बेटा अता करे जो कल बैतुल मुकद्दस को फतेह। सुभान अल्लाह। सलाहुद्दीन ने के वालिद हजरत नजमुद्दीन अय्यूबी ने सुना, उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो सोचते हैं आखिर ये कौन सी लड़की है, जैसी ख्वाहिश मैं रखता हूँ ऐसी ख्वाहिश ये भी रखती है। आप अपने पीरो मुर्शिद के पास गए और कहते हैं मैं इसी से निकाह करना चाहता हूँ। आपका निकाह हुआ है और अल्लाह ने इन दोनों के दरमियान से जिस बेटे को पैदा किया है दुनिया उसी को सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। जरा गौर कर ले, तारीख गवाह है जब माँ बाप नेक होते हैं तभी बच्चे नेक होते हैं। अगर माँ बाप सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिदैन जैसे हो तो बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा होता है। अगर माँ बाप नेक हो तो बेटा गौसे आजम जैसा होता है। अगर माँ नेक हो तो बेटा सैयद सालार मसूद काजी जैसा होता है। अगर माँ नेक हो तो बेटा गरीब नवाज जैसा होता है। अगर माँ आबिदा हो, माँ जाहिदा हो तो बेटा वारिस पाक जैसा होता है, मखदूम पाक जैसा होता है, साबिर पाक जैसा होता है। अगर माँ बाप नेक हो तो बेटा आला हजरत जैसा होता है। अगर माँ बाप नेक हो तो बेटा मुफ्ती आज़म हिंद जैसा होता है। अगर माँ बाप नेक हो तो बेटा सदरुल शरिया जैसा होता है। अगर माँ बाप नेक हो तो बेटा हाफिज मिल्लत जैसा होता है। आप उलमा तवज्जो करेंगे, अगर माँ नेक हो और इस तरह नेक हो कि अपने ज़ेवरात को गिरवी रख करके मंज़र इस्लाम के मुदर्रिसीन की तनख्वाह अदा कर दे तो उसकी कोख से जो बच्चा पैदा होता है दुनिया उसी को कादुल शरिया के नाम से जानती है। जिन्होंने कहा था अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, फैज़ान हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, जिंदाबाद। तवज्जो है, मैं अपनी माओं से बहनों से गुजारिश करता हूँ सुनो, अगर आप चाहती हैं कि आपकी औलाद नेक हो तो पहले आपको नेक बनना होगा। अगर आप बैठ करके मोबाइलों पर सीरियल देखेंगी, बैठ करके गाने सुनेंगी, बैठ करके लेटेस्ट मूवियां देखेंगी तो आपकी कोख से जो बच्चा पैदा होगा वो कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसी हिम्मत और उनकी जैसी जुर्रत रखने वाला नहीं हो सकता है। आपकी कोख से जो बच्चा पैदा होगा वो भी आप ही की तरह गानों से मोहब्बत करने वाला होगा। इसलिए कि जब माँ बाप नेक होते हैं तभी बच्चे नेक होते हैं। अगर आप ये चाहते हैं, और खास तौर से मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप ये चाहती हैं कि आपकी आने वाली नस्लें नेक हो तो पहले आपको नेक बनना होगा। अगर आप कुरान की तिलावत करेंगे तो आने वाला बच्चा भी कुरान की तिलावत करने वाला होगा। अगर आप कुरान से मोहब्बत करेंगे तो आपकी आने वाली नस्लें कुरान से मोहब्बत करने वाली होंगी। अगर आप नमाजों की पाबंदी करेंगे तो आपकी आने वाली नस्लें भी नमाजों की पाबंदी करने वाली।
इसलिए कि जब माँ बाप नेक होते हैं तभी बच्चे नेक होते हैं। देखें आगे आला हज़रत फरमाते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जरा तवज्जो करें, अगर गौसे आजम की अजमत ही बयान की जाए तो पूरा वक्त खत्म हो जाएगा, पूरी रात खत्म हो जाएगी, लेकिन कमा हक़ो गौसे आजम की अजमत बयान नहीं हो सकती है। मैं गौसे आजम का एक कौल नकल करता हूँ और उस पर आपकी तवज्जो चाहता हूँ और उसी पर थोड़ी गुफ्तगू करके रुखसत होना चाहता हूँ। तवज्जो है, हुजूर गौसे आजम एक मरतबे खिताब कर रहे थे, आपने खिताब करते हुए फरमाया लोगों सुनो। आप फरमाते हैं अपने नाना जान की एक हदीस को बयान करते हुए हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं मेरे नाना जान ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में एक शख्स को लाया जाएगा, उसके पास नेकियां इतनी होगी कि वो अपनी नेकियों को देख करके दिल ही दिल में खुश होगा। वो सोचेगा ऐ अल्लाह आज मैं तेरी बारगाह में इतनी नेकियां लेकर के आया हूँ, आज मुझे जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। हुजूर फरमाते हैं सुनो, जब उसकी नेकियां तौली जाएंगी, जब उसके नाम आमाल तौले जाएंगे मीज़ान पर, जब उसके नाम आमाल को वजन किया जाएगा तो उसके पास नेकियां बहुत होगी, नेकियों का पल्ला भारी होगा। जब नेकियों का पल्ला भारी होगा फरिश्ते कागज का एक छोटा सा टुकड़ा निकाल करके उसके गुनाह के पल्ले में डालेंगे, अब उसके गुनाह का पल्ला भारी हो जाएगा। हुजूर फरमाते वो बंदा अर्ज करेगा ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत मैं तेरी बारगाह में इतनी नेकियां लेकर के हाजिर हुआ था, लेकिन इस कागज के छोटे से टुकड़े में ऐसा क्या लिखा है जिसने मेरी जिंदगी की तमाम नेकियों को तबाह बर्बाद कर दिया है। तो जरा तवज्जो रखें, हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया सुनो, हातिफ़ गैबी से आवाज आएगी, अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे सुन, तूने दुनिया में इबादतें खूब की थी, तूने दुनिया में नेकियां खूब की थी, लेकिन एक मर्तबे तूने एक मर्तबे सिर्फ एक मर्तबे चीख करके अपने माँ बाप से बातें कर ली थी। वो तेरे माँ बाप से चीख करके बातें करना था कि उसने तेरी जिंदगी की तमाम नेकियों को तबाह हो। जरा आप बताएं एक मर्तबे, तवज्जो है नौजवानों की तवज्जो चाहता हूं, वो उधर जो कुर्सी पे बैठे सो रहे हैं, अगर जलसा सुनना है तो जगा दो, सुन ले नहीं तो घर पे जाके आराम करें। तवज्जो है आपकी, तो पीछे खड़े तुम्हारी जिम्मेदारी है, जगाओ उनको, हाँ हालत मनाम से जगाओ। इधर तवज्जो, तवज्जो है। देखें इतने नौजवान यहाँ बैठे, मैं अर्ज ये कर रहा था हुजूर फरमाते एक मर्तबे जिसने चीख करके माँ बाप से बातें कर ली, अल्लाह ने उसकी जिंदगी की तमाम नेकियों को तबाह बर्बाद कर दिया है। तो जरा मेरे नौजवान तवज्जो कर ले, जो बात बात पर माँ बाप पर चीख पड़ते हैं, अगर माँ बाप किसी काम से रोक दे चिल्ला पड़ते हैं, अगर माँ बाप किसी काम से मना कर दे माँ बाप को डांट देते हैं। पास तो ऐसे हैं जो माँ बाप को गालियां देते भी नजर आते हैं, जो माँ बाप को कोसते भी नजर आते हैं, जो माँ बाप को बुरे अलकाब से पुकारते भी नजर आते हैं। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, आप लिखते हैं एक मसले के जवाब में आपने फरमाया सुनो, माँ बाप का अदब ये है, माँ बाप का अदब व एहतराम ये है, माँ बाप की इज्जत ये है कि जब माँ बाप से गुफ्तगू की जाए तो डायरेक्ट उनसे गुफ्तगू ना की जाए, पहले माँ बाप से इजाजत ले ली जाए, अगर माँ बाप इजाजत दे दे तब उनसे बात की जाए। और आप फरमाते हैं अगर माँ बाप इजाजत दे दे तो इस तरह गुफ्तगू करो कि जैसे एक गुलाम अपने आका से गुफ्तगू करता है, जैसे गुलाम की आवाज कभी आका की आवाज पर बुलंद नहीं होती है, ऐसे जब तुम अपने माँ बाप से गुफ्तगू करो तो उनकी आवाज पर अपनी आवाज को कभी बुलंद। देखें हुजूर फरमाते हैं तवज्जो है, जिनके माँ बाप सलामत हैं अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह उन्हें उम्र खिज़र अता फरमाए, जिनके इंतकाल करके कब्र में जा चुके हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, कब्र पर अनवारो तजल्लियात की बरसात फरमाए। जरा सुन ले माँ बाप की अजमत क्या है। आज माँ बाप जिंदा है, उनका अदब व एहतराम आपको समझ में नहीं आता है, उनका वकार उनकी इज्जत आपको समझ में नहीं आती है, लेकिन जरा तवज्जो करें ये माँ बाप कौन है। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी ये बताएं अल्लाह हमें नजर नहीं आता है, अगर हमें ये जानना हो कि अल्लाह हमसे राजी है या नाराज है तो हुजूर कोई तरीका बता दे जिससे हम ये समझ जाए कि अल्लाह हमसे राजी है या अल्लाह हमसे नाराज है। तो हुजूर ने फरमाया सुनो, अपने घर वापस जाओ, माँ बाप का चेहरा देख लो, अगर माँ बाप राजी हैं तो आंख बंद के ये यकीन कर लो कि तुमसे तुम्हारा रब राजी है, और अगर माँ बाप नाराज है तो तुमसे तुम्हारा रब नाराज। जो फरमाते हैं रब की रजा ये माँ बाप की रजा में है, और रब की नाराजगी ये माँ बाप की नाराजगी में है। जरा तवज्जो कर ले, ये माँ बाप अल्लाह की एक नेमत है और ऐसी वैसी नेमत नहीं है, बड़ी अजीम नेमत है। मेरी बहनें भी तवज्जो कर ले, इनकी जबानें भी माँ बाप के सामने पड़ा चला करती हैं। अगर माँ बाप किसी बुरे काम से रोक दे तो कहते तुम्हें क्या मालूम है, ये मॉडर्न जमाना है, तरक्की का जमाना है, तुम्हारा जमाना कब का लट के जा चुका है, तुम्हें क्या मालूम है इस दौरे तरक्की में किस तरह जीना है। याद
याद रखें, माँ बाप का अदब व एहतराम करें। अगर माँ बाप के सामने आप जबान चलाएंगे, जिंदगी भर की आपकी नेकियां तबाह बर्बाद कर दी जाएंगी। इसलिए कि माँ बाप अल्लाह की एक ऐसी नेमत है जो जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलती है। जरा गौर कर ले, आपका कोई दोस्त है, अगर उससे आपकी दोस्ती टूट जाए, आप किसी और शख्स के करीब हो जाए, वो भी आपका सगा ही दोस्त होगा। आपका कोई भाई है, खुदा न करे उसका इंतकाल हो जाए, आपका अगर कोई दूसरा सगा भाई है तो वो भी आपका सगा ही भाई होगा। अगर आपकी कोई बीवी है, अल्लाह न करे उसका इंतकाल हो जाए, आप दूसरा निकाह कर लेंगे, वो भी आपकी सगी ही बीवी होगी। लेकिन ये माँ बाप अल्लाह की एक ऐसी नेमत है, अगर जिंदगी में ये एक मर्तबे आपकी नजरों से ओझल हो गए, आप कायनात में किसी के दामन को पकड़ के माँ और बाप कह लें, लेकिन वो आपके हकीकी माँ बाप नहीं हो। इसलिए कि ये नेमत जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलती है। जरा तवज्जो कर ले, एक मिसाल आप सुन ले। और जब मैंने इसको रिसाले में पढ़ा था तो मेरी आंख में भी आंसू आ गए थे। जरा तवज्जो करें, देखें माँ बाप कितनी अजीम नेमत है। एक शख्स से उसका निकाह हुआ है, अल्लाह ने उसे बेटे की शक्ल में बड़ी खूबसूरत औलाद अता की है। कुछ साल गुजरे, उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। तवज्जो करें, जरा दिल से सुन ले, उसने दूसरा निकाह किया है। एक मरतबे वो शख्स यूं ही बेख्याली में बैठा था, उसके बेटे का गुज़र उसके सामने से हुआ। 7 साल की उम्र है उसके बेटे की। उसने अपने बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद पूछता है, मेरे बेटे जरा ये बता, वो तेरी पहली वाली माँ थी जिससे मैंने पहले निकाह किया था, जिसने तुझे पैदा किया है, और ये जो तेरी दूसरी वाली माँ है जिससे मैंने बाद में निकाह किया है, इन दोनों में तुझे कोई फर्क नजर आता है? इन दोनों में तुझे कोई डिफरेंस नजर आता है? तवज्जो करे तो बेटे ने बड़ा मासूमियत भरा जवाब दिया। बेटा कहता है, मेरे बाप तो मेरी पहली वाली माँ थी जिसने मुझे पैदा किया था, वो कायनात की सबसे बड़ी झूठी औरत थी, उससे बड़ी झूठी औरत मैंने कभी देखी नहीं है। और ये तो मेरी दूसरी वाली माँ है, इससे बड़ी सच्ची औरत मैंने कभी देखी ही नहीं। उसके बाप को ताज्जुब हुआ जैसे आपको ताज्जुब हो रहा है। उसने कहा, मेरे बेटे जरा इसको एक्सप्लेन तो कर, जिस माँ ने तुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा, जिसने अपना खूने जिगर पिला के तुझे बड़ा किया, जो मौत की वादियों से लड़ करके तकलीफें सह करके दुनिया में तुझे लाने का सबब बनी है, तू उसे झूठी कह रहा है? ऐसा कौन बेटा होगा एहसान फरामोश जो अपनी माँ को झूठी कहेगा, सगी माँ को, और सौतेली माँ को सच्ची कहेगा? तो बेटे ने कहा, मेरे बाप जरा सुने, मैंने अपनी सगी माँ को झूठी इसलिए कहा है कि जब मैं उसकी बात नहीं सुनता था, वो मुझसे कहती थी, अगर पढ़ने नहीं जाएगा दिन भर भूखा रखूंगी, तुझे खाना नहीं दूंगी। है मेरे बाप, मैं दिन भर उसकी बात नहीं सुनता था, दिन भर खेल कूद में मशगूल रहता था, लेकिन जब मैं घर वापस आता था वो मुझे अपने हाथों से खिलाती भी थी, मुझे अपने हाथों से पिलाती भी थी, मुझे अपने सीने से भी लगाती थी। और ये तो मेरी दूसरी वाली माँ है। अब जब आप दफ्तर चले जाते हैं, ये मुझसे कहती है, सुन अगर काम नहीं करेगा दिन भर भूखा रखूंगी, खाना नहीं दूंगी। है मेरे बाप, आपको मालूम नहीं है मैं दिन भर भूखा रहता हूँ लेकिन मुझे ये खाना नहीं देती है, मैं दिन भर प्यासा रहता हूँ, ये मुझे पानी नहीं देती है। उसने कहा, मेरे बाप, मैंने अपनी सगी माँ को झूठी इसलिए कहा है कि वो जो कहती थी वो करती थी, वो जो कहती थी वो उसका उल्टा करती थी, उसका उलट करती थी, उसके बरअक्स करती थी। वो कहती थी तुझे खाना नहीं दूंगी, लेकिन वो मुझे खाना भी देती थी। वो कहती थी तुझे पानी नहीं दूंगी, वो मुझे पानी भी देती थी। ऐ मेरे बाप, उसे मैंने झूठी इसलिए कहा है कि वो जो कहती थी वो करती नहीं थी, और इसे मैंने सच्ची इसलिए कहा है कि ये जो कहती है वो करती है। ये मुझे दिन भर भूखा रखती है, कभी खाना नहीं देती है, मुझे दिन भर प्यासा रखती है, कभी पानी नहीं देती है। उसने कहा, मेरे बाप, आपने मुझसे पूछा है कि दोनों माओं में फर्क क्या है? सुने, मैं कायनात में चाहे जिसके दामन को पकड़ लूं, लेकिन औलाद के लिए जो मोहब्बत सगी माँ के सीने में होती है वो कायनात में किसी और के दिल में नहीं। देखें आप, अगर माँ बाप जिंदा हैं उनकी कद्र करें आप। आज आप इमाम साहब के पास आते हैं, ये कारी आरिफ साहब किबला तशरीफ रखते हैं, उलमा तशरीफ रखते हैं, इनके पास आके आप यही कहते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, हजरत दुआ फरमा दे। ये उलमाए कराम मौजूद है, बड़ी जिम्मेदारी से मैं अर्ज करता हूँ, अगर आपके लिए, हम लोग तो गुनहगार हैं, आपके लिए अगर कोई सैयदजादा भी दुआ करे, आपके लिए कोई गौस कुतुब अब्दाल औताद अपने वक्त का मुहद्दिस मुहक्किक मुफक्किर फकीह आपके अपने वक्त का मुजद्दिद दुआ करे, कितना
कितना नेक बंदा दुआ करे, कोई गारंटी नहीं है कि वो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो या अल्लाह रद्द फरमा दे। लेकिन अगर आपके माँ बाप आपके हक में दुआ कर दे तो हुजूर फरमाते सुनो, माँ बाप हुजूर फरमाते सुनो, बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में, जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में अल्लाह कभी रद्द नहीं करता है, ऐसे ही माँ बाप की दुआ औलाद के हक में अल्लाह कभी रद्द नहीं फरमाता है। और हुजूर फरमाते सुनो, इसको सूफिया रिवायत करते हैं कि जब एक माँ के हाथ औलाद के हक में दुआ के लिए उड़ जाए तो अल्लाह का अर्श कांपने लगता है। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों ये अर्श क्यों कांप रहा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला तू आलमुल खबीर है, तू जर्रे जर्रे को जानता है, मौला तुझे बखूबी मालूम है ये अर्श क्यों कांप रहा है। ऐ अल्लाह, आज एक माँ ने अपने बेटे के हक में दुआ के लिए हाथ उठाया है, इसीलिए अर्श कांप रहा है। तो अल्लाह फरमाता है सुनो, तुमने उसके उठते हुए हाथ बाद में देखे थे, अभी माँ के हाथ उठे नहीं थे कि मैंने उसकी दुआ को कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। दुआ लेनी है तो पहले माँ बाप की दुआ ले, पीर साहब के पीछे बाद में भागे, हम लोगों के पीछे आप बाद में आए। हम लोग दुआ करें, कोई जमानत नहीं है कि वो दुआ कबूल हो या अल्लाह रद्द फरमा दे, लेकिन माँ बाप दुआ कर दे तो हुजूर जमानत देते हैं कि वो दुआ डायरेक्ट कबूल हो जाती है, अल्लाह कभी रद्द नहीं फरमाता है। और यहाँ तक हुजूर फरमाते हैं कि दुनिया के किसी कोने में कायनात के सारे मुत्तकी परहेजगार इकट्ठा हो गए, किसी शख्स के लिए हाथ उठा दे और कहे अल्लाह उस बंदे को बर्बाद कर दे, अल्लाह उस बंदे को तबाह कर दे। और हुजूर फरमाते तन्हा उसकी माँ घर में हाथ उठा ले और कहे ए अल्लाह मेरे बच्चे को आबाद रखना, मेरे बेटे को सलामत रखना। तो हुजूर फरमाते अगर माँ अपनी औलाद के हक में दुआ के लिए हाथ उठा दे तो कायनात के सारे मुत्तकी परहेजगार की बद्दुआओं को अल्लाह रद्द फरमा देता है, और तन्हा माँ की दुआ को औलाद के हक में अल्लाह कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई जरूरी नहीं है कि आपका बाप पंज वक्ता मस्जिद में हाजिर रहने वाला हो तभी उसकी दुआ कबूल होगी, ऐसा नहीं। वो नमाज नहीं पढ़ता है, वो अपने अमाल का खुद जिम्मेदार होगा। माँ आपकी कभी नमाज नहीं पढ़ती है, वो अपने अमाल की खुद जिम्मेदार होगी। बाप तुम्हारा नमाज नहीं पढ़ता है, अगर जुआरी हो, शराबी हो, सूदखोर हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा है। माँ तुम्हारी अगरचे नमाज नहीं पढ़ती है, लेकिन तुम्हारी जन्नत उसके कदमों के नीचे है। अगर वो हाथ उठा के दुआ कर दे तो अल्लाह उनकी इबादतों को नहीं देखेगा, उनके उठते हुए हाथ को देखेगा और अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल। सुभान अल्लाह। आज नौजवान यहाँ बैठे, थोड़ी सी तरक्की, दिल लग रहा है थोड़ी सी बात और हो जाए, बस आखिरी मरहले से गुफ्तगू गुजर रही, तवज्जो है। आज के ये नौजवान थोड़ी सी तरक्की जिंदगी में मिल जाए, थोड़ा सा दिल्ली मुंबई का चक्कर लगा के आ जाए, तो ये समझते हैं अब ये माँ बाप जो है अब हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। अब तो पैसे आ गए, शोहरत आ गई, जिंदगी में कामयाब हो गए, सेटल हो गए, अब माँ बाप अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। जरा आप ये बताएं, आप कितना भी कामयाब हो जाएं, क्या आप किसी नबी के मकाम तक पहुंच सकते? नहीं पहुंच सकते हैं। देखें जलीलुल कद्र नबी हैं अल्लाह के, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह से हम कलाम होने के लिए कोहे तूर पर जाते हैं। अल्लाह ने आपको कलीमुल्लाह का लक़ब अता किया है। एक मरतबे पहुंचे अल्लाह से हम कलाम होने के लिए, जब गए तो अल्लाह ने फरमाया मूसा आज जरा संभल के गुफ्तगू करना, आज जरा संभल के बातें करना। अर्ज करते हैं अल्लाह मैं इससे पहले भी तेरी बारगाह में कई मरतबे आया और तुझसे मैंने गुफ्तगू की, तुझसे मैं हम कलाम हुआ। अल्लाह तूने इससे पहले कभी ये नहीं फरमाया कि मूसा गुफ्तगू करना तो संभल के करना, आज तूने क्यों फरमाया है कि ऐ मूसा आज जब गुफ्तगू करना तो जरा संभल के करना? तो अल्लाह का जवाब सुने, अल्लाह फरमाता है मूसा इससे पहले जब तुम मुझसे हम कलाम होने के लिए आते थे, तुम घर से निकलते थे, तुम्हारी माँ के हाथ उठ जाते थे और वो दुआ करती थी अल्लाह मेरे बेटे की तबीयत में थोड़ा सा जलाल है, अगर उसकी आवाज तेरी बारगाह में बुलंद हो जाए तो अल्लाह माफ कर देना, अल्लाह दरगुजर फरमा देना। अल्लाह ने फरमाया मूसा अब तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया है और कायनात में माँ जैसा तुम्हारे हक में दुआ करने वाला कोई मौजूद नहीं है, इसलिए कि माँ की दुआ को मैं कभी रद्द नहीं करता हूँ। अब माँ दुआ करने के लिए तुम्हारे हक में दुनिया में मौजूद नहीं है, इसलिए मूसा आज जब तुम मुझसे गुफ्तगू करना तो जरा संभल के करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर करें आप, मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र नबी को भी अगर किसी की दुआ की जरूरत है तो वो माँ है। देखे हुजूर हमारे और आपके नबी, हम सब की जान आकाए दो जहां
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس چیز کی کمی ہے حضور کی بارگاہ میں؟ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جتنی نعمتیں تھیں سب سے اللہ نے حضور کو سرفراز فرما دیا۔ حضور خود فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلے، لیکن آپ دیکھیں فتح مکہ کا واقعہ ہے، حضور نے جب کئی ہزار صحابہ کو نماز پڑھائی ہے، حضور نے سلام پھیرا ہے، حضور پھوٹ کر کے روئے ہیں، اس طرح روئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے رونے کی آواز سے حضور کی زبان سے نہیں، منہ سے نہیں، بلکہ دل سے آ رہی تھی، سینے سے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور آج رونے کا دن نہیں ہے حضور، آج تو مسکرانے کا دن ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام کو قبول کر چکے ہیں، آخر حضور آپ روئے کیوں ہیں؟ تو حضور فرماتے میرے صحابہ سنو، آج مجھے اپنی ماں آمنہ کی یاد آ گئی ہے، آج میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اگر میری ماں مجھے دیکھتی کہ میں اتنے لوگوں کی امامت کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے اس منصب پر فائز کر دیا ہے، تو میری ماں کے دل کو بڑی خوشی ہوتی۔ حضور نے کہا میرے صحابہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں تم سب کو نماز پڑھا رہا ہوں اور میری ماں آمنہ مجھے آواز دے کر کے پکارے، میں نماز توڑ کر کے اپنی ماں کے پاس پہنچ جاؤں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ سنو، دنیا میں سب کی محبتیں اپنی جگہ ہے اور ماں کی محبت اپنی جگہ ہے، اس لیے آج تمہارے نبی کو اپنی ماں کی یاد آتی۔ ذرا بتائیں آج ماں باپ ہیں قدر سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جس دن دنیا سے چلے گئے چراغ لے کے ڈھونڈو گے لیکن ماں باپ نہیں ملیں گے۔ دنیا میں جتنے رشتے ہیں سب مطلبی ہیں، دنیا میں جتنے رشتے ہیں سب کسی نہ کسی مطلب سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن ماں باپ کا وہ رشتہ ہے جو کوئی آپ سے مطلب سے نہیں جڑا ہے بلکہ اس کا تعلق ڈائریکٹ محبت سے ہے۔ اس لیے ماں باپ کی قدر کریں۔ ایک واقعہ میں آپ سب کے سامنے پڑھ کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں یہی موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ رب العزت جنت میں ہر شخص کا کوئی نہ کوئی پڑوسی ہوگا، اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس شخص کا دیدار کروں جو جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ توجہ کریں، دیکھیں ماں باپ کی دعائیں انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ نے فرمایا موسیٰ دیکھنا چاہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں اے اللہ دل تو چاہتا ہے کہ میں اس شخص کا دیدار کروں جو جنت میں میرے ساتھ رہے گا، اے اللہ یہ تیرا کرم ہے اگر تو دکھا دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ فلاں چوراہے پر فلاں جگہ پر فلاں علاقے میں چلے جاؤ، ایک شخص ہے اس کو دیکھ لو وہ جنت میں تمہارے ساتھ رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بتائی ہوئی نشانی کے مطابق پہنچے ہیں۔ آپ نے دیکھا ایک شخص ہے جس کی گوشت کی دکان ہے، دن بھر گوشت کاٹتا ہے بیچتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے، وہ دن بھر گوشت کاٹتا رہا، جب شام ہو گئی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے تھوڑا گوشت اپنے ساتھ میں لیا، دکان کو بند کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا آ کے عرض کرتا ہے میں صبح سے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ یہاں موجود ہیں، آپ ہمارے شہر کے نہیں لگتے ہیں، یقیناً آپ مسافر ہیں، اگر آپ مسافر ہیں تو آج کی شام کی دعوت آپ کی میرے گھر پہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سوچتے ہیں یہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا، اللہ نے فرمایا ہے یہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا، یہ اللہ نے مجھ سے کہا ہے یہ جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا، یہ اللہ نے مجھے بتایا ہے، لیکن یہ کس عمل کی بنیاد پہ میرے ساتھ رہے گا؟ یہ تو دن بھر گوشت بیچتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ کوئی عبادت کرتا ہے۔ آپ نے سوچا شاید یہ گھر پہ چل کے عبادت کرتا ہو، آپ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس کے ساتھ اس کے گھر پہنچے ہیں، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بٹھایا، توجہ کرے، جا کے اندر گیا ہے، کھانا تیار کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے چل کے آپ کھانا کھا لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بتاؤ تم میرے ساتھ نہیں کھاؤ گے؟ اس نے کہا میں آپ کے ساتھ نہیں کھاؤں گا، اگر آپ کو میرے ساتھ کھانا ہے تو آپ کو انتظار کرنا ہوگا، اگر آپ کو ابھی کھانا ہے تو آپ کو تنہا کھانا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام سوچتے ہو نہ ہو میں کھانے میں مشغول ہو جاؤں اور یہ عبادت میں مصروف ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اکیلے نہیں کھاؤں گا، مجھے چاہے جتنی دیر تک انتظار کرنا پڑے میں تمہارے ساتھ کھاؤں گا۔ بے شک اگر میرے ساتھ کھانا ہے تو آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جب دعوت تم نے لی ہے تو تمہارے لیے تو میں انتظار بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا اصل میں معاملہ یہ ہے کہ میری ایک بوڑھی ماں ہے جس کی عمر تقریباً 100 سال ہو گئی ہے، وہ کہتا ہے وہ چل پھر نہیں سکتی ہے، وہ کھا پی نہیں سکتی ہے، اپنے ہاتھ سے اپنا کام نہیں کر سکتی ہے، جب تک میں اسے کھلا پلا نہ دوں تب تک میں اپنے اوپر ایک لقمے کو بھی حرام سمجھتا ہوں۔ اس نے کہا تب تک میں کچھ نہیں کھاتا ہوں۔ وہ گیا ہے اندر اور اس نے اپنی ماں کو اٹھا کے بٹھایا۔ مورخین فرماتے ہیں اتنی ضعیفہ عورت تھی، اتنی کمزور تھی، یعنی ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھی، بستر پہ لیٹی تھی، اوپر سے چادر تھی تو لگتا ہی نہیں تھا کوئی اندر لیٹا ہوا ہے۔ اس نے اپنی ماں کو اٹھایا ہے، اس کے چہرے کو دھلا ہے، اس کے ہاتھ اور پیر کو دھلا ہے اور اس نے اپنے ہاتھ سے اور اپنے منہ میں اس نے لقمہ رکھا ہے اور اس کو چبا کر کے
उसने अपने हाथ से अपनी माँ को खिलाना शुरू किया है। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते लोगों मैं भी उसकी माँ की इजाजत से, इसलिए कि वो बूढ़ी औरत थी, ज़ईफ़ा थी, उसके कमरे में आ गया था। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते मैं देखता रहा वो अपनी माँ को खिलाता रहा, मैं देखता रहा वो अपनी माँ को पिलाता रहा। जब उसने अपने हाथ से अपनी माँ को खिला दिया है, अपने हाथ से अपनी माँ को पिला दिया है, उसने अपनी माँ को लिटाया है, जब चलने लगा है तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते लोगों उसकी माँ के कांपते हुए हाथ उठ गए। वो अर्ज करती है अल्लाह रब्बुल इज्जत तू देख रहा है ना मेरे बेटे ने मेरी कैसी खिदमत की है। ऐ अल्लाह अब मैं चल फिर नहीं सकती हूँ, मेरा बेटा मुझे खिलाता भी है, मेरा बेटा मुझे पिलाता भी है। ऐ अल्लाह मैं अपने बेटे से राजी हूँ और तुझसे यह दुआ करती हूँ कि तू इससे राजी हो जा और जन्नत में इसे हजरत मूसा का साथ सुभान अल्लाह सुभान मूसा अल्लाह। अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब वो नौजवान मेरे पास आया है और आने के बाद कहता है चले चल के खाना खा ले, ऐ मुसाफिर चलो और चल के खाना तनाउल कर लो। मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए और खड़े होकर के आप कहते हो नौजवान सुन मैं कोई मुसाफिर नहीं हूँ बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ नबी मूसा हूँ और तुझे ये बशारत देने आया हूँ कि तू जो अपनी माँ की खिदमत करता है तेरे इस अमल से अल्लाह इतना राजी हो गया है कि अल्लाह ने तेरी मग़फ़िरत फरमा दी है और जन्नत में अल्लाह ने तुझे मेरा साथ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुनियाद पर सिर्फ माँ बाप की खिदमत की बुनियाद पर माँ बाप की खिदमत करें। अगर माँ बाप को आपने तकलीफ दी है उनसे माफी मांगे, अगर माँ बाप जिंदा है राजी करें, माफी मांगे तकलीफ दी है। अगर वो इंतकाल करके कब्रों में जा चुके हैं उनकी कब्रों पे जा करके उनसे माफी मांगे। बस आखिरी गुजारिश अपने नौजवानों से करता हूँ कि हुजूर की सीरत पर अमल करें, बुजुर्गों से मोहब्बत करें, उलमा के करीब हो, दीन को समझें, दीन पर अमल करें। चलते चलते आप सबसे गुजारिश करता हूँ आपके यहाँ के हालात कैसे मैं नहीं जानता हूँ लेकिन पूरे हिंदुस्तान में अक्सरियत इस चीज की है और अक्सर इलाकों और अक्सर मोहल्लों और अक्सर आप देख लें अक्सर जिलों और अक्सर स्टेट में जहाँ भी मुसलमान हैं वहाँ के हालात आप देख लें। आज मुस्लिम नौजवान जिस गुनाह में सबसे ज्यादा मुलव्विस है वो नशा है, समझ रहे हैं नशा है। आज नौजवानों को मना किया जाता है, वो कहते हैं हम शराब नहीं पीते हैं इसलिए कि शराब इस्लाम में हराम है। हम कभी नटराबिट जैसी गोलियां खा लेते हैं, कभी कोरेक जैसी सिरप गटक जाते हैं और कभी हम बियर्स के घूंट लगा लेते हैं, कभी चरस अफीम और गांजे के घूंट लगा लेते हैं, उनकी फूंक लगा लेते हैं। जरा तवज्जो करें नौजवान कहते हैं हजरत हम शराब नहीं पीते हैं, शराब इस्लाम में हराम है। हम कभी कोरेक्स पी लेते हैं, कभी हम बियर पी लेते हैं। जरा तवज्जो कर ले हुजूर ने फरमाया सुनो क़यामत की निशानी है, हुजूर ने फरमाया कुर्बे क़यामत लोग शराब का नाम बदल बदल के पिएंगे। और हुजूर ने आगे फरमाया सुनो कुल्लु मुस्किरिन हराम, हुजूर ने फरमाया सुनो क़यामत तक जिस चीज से भी नशा किया जाएगा वो हराम ही होगी। हुजूर फरमाते सुनो जो अज़ाब शराब पीने वालों को दिया जाएगा वही अज़ाब दीगर चीजों से नशा करने वालों। अब चाहे कोरेक्स के घूंट लगाओ, चाहे बैठ करके चिलम गांजा चप्पड़ फूको, जो अज़ाब शराब पीने वालों को मिलेगा वही अज़ाब इन चीजों से नशा करने वालों को मिलेगा। नौजवान कहते हैं हजरत जिम ज्वाइन किया, थोड़ा सा जिस्म को फरबा करना था, चेहरे को खूबसूरत करना था, बियर के घूंट लगा लिए थे। बियर शराब नहीं होती, वो तो फल से बनती है। अब मुझे बताएं कौन सी शराब है जो मिट्टी से बनती है, कौन सी शराब है जो दरख्त के पत्तों से बनती है? फलों ही से तो बनती है शराब। जो सबसे कच्ची जिसे देसी कहा जाता है वो तो अंगूर से बनती है। आप सब मुझसे ज्यादा तजर्बेकार हैं, जरा बताएं आप। तो अगर आप ये कहेंगे कि फल से बनी थी इसलिए पी लिया एनर्जी के लिए, हुजूर फरमाते सुनो जिसने शराब का एक घूंट पिया, हुजूर फरमाते 40 दिन तक अल्लाह ना उसकी इबादतों को कबूल करता है और ना उसकी दुआओं को कबूल करता है। और हुजूर फरमाते जिसने एक घूंट शराब का पिया और बिना तौबा किए वो मर गया, हुजूर फरमाते कल जब वो अपनी कब्र से उठेगा उसको इंसानी शक्ल सूरत में नहीं उठेगा। हुजूर फरमाते अल्लाह उसके चेहरे को तब्दील करके या तो सूअर की तरह कर देगा या तो बंदर की तरह कर देगा। जरा वो नौजवान तवज्जो करे, वो चेहरे को खूबसूरत करने के लिए शराब और बियर के घूंट लगाते हैं। हुजूर ने फरमाया सुनो अगर एक घूंट तुमने शराब का पिया तो कल कब्र से उठोगे तो सूअर की शक्ल में उठोगे या तो बंदर की शक्ल में उठोगे। और हुजूर फरमाते हैं जिसने शराब का एक घूंट पिया अल्लाह उस पर इतनी प्यास मुसल्लत कर देगा कि वो पानी पानी चिल्लाएगा, लेकिन उसे पीने के लिए जहन्नमी बिच्छुओं का जहर जहन्नमी इंसानों की खोपड़ी। जरा गौर कर ले, मैं किसी पर इल्जाम तराशी नहीं कर रहा हूं,
نہ کسی کو اشارہ کر کے کہتا ہوں کہ تم نشہ کرتے ہو یا تم نے شراب پی، نہیں، آپ اپنے حالات اعمال کو بخوبی جانتے ہیں۔ اگر آپ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے، یہاں اٹھنے سے پہلے آپ توبہ کر کے اٹھیں اور یہ تہیہ کر کے اٹھیں کہ کبھی آپ انشاءاللہ اپنی پوری زندگی میں کبھی اپنے ہاتھ کو آپ نشے کی طرف نہیں بڑھائیں گے، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں جو نشہ کرتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے، آخرت میں بھی ذلت ہے۔ دنیا میں کیا ذلت ہے؟ آپ دیکھیں کہیں نالی کے کنارے پڑا ہے، کہیں اس پہ جانور کتے پیشاب کر کے جا رہے ہیں، جس کو دیکھو وہ گالی دے رہا ہے بیوڑا نسیڑی کہہ کر کے، جس کو دیکھو وہ اٹھا کر کے ادھر ادھر پھینک دے رہا ہے، کہیں عزت نہیں ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں مر کے جب جائے گا تو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ توجہ کر لیں، آپ دیکھیں صحابہ کے دور کو، بس آخری بات، جتنے برانڈ آج کے دور میں ہے نا، اس سے کہیں زیادہ برانڈ صحابہ کے دور میں۔ اٹھائیے آپ سیاہ ستہ، بخاری شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، حدیث کی کتابوں میں اس وقت برتنوں کے نام الگ تھے جب شراب پی جاتی تھی۔ اور آپ دیکھیں آج آپ کے یہاں کوئی مہمان آتا ہے، جیسے میں اس گاؤں میں آیا آپ کے یہاں درجن پوروا میں، تو استقبال کس سے کیا گیا؟ مٹھائی دے کر کے۔ لیکن صحابہ کے دور میں آپ دیکھ لیں جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، جب شراب حلال تھی، اس دور میں اگر کوئی آتا تھا تو اس کے استقبال کے لیے اسے گلاس میں شراب دی جاتی تھی۔ لیکن جب شراب حرام ہوئی ہے اور حضور نے فرمایا اعلان کر دیا جائے کہ اللہ نے آج سے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے، تو آپ دیکھیں محدثین مورخین فرماتے ہیں اسلام کی تاریخ ہے کہ اس وقت اگر کسی صحابی کے ہاتھ میں شراب کا گلاس بھی تھا اس نے وہی پھینک دیا، کسی نے اگر پی لیا تھا پیٹ میں تھا قے کر دیا، پلٹی کر دی، کسی کے گھر میں تھا لا کے باہر ڈال دیا۔ اتنی شراب ڈالی گئی کہ گلیوں میں شراب بہ رہی تھی۔ یہودیوں نے کہا پھینکتے کیوں ہو؟ اتنی مہنگی شراب تم نے بنائی ہے، اس کو بیچ لو تمہیں اس کی قیمت مل جائے گی۔ تو صحابہ نے کہا سنو، جس کو میرے نبی نے حرام قرار دے دیا ہو اور اسلام میں جو حرام ہو اب اس کو ہم کبھی ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اب ہماری زندگی میں موت تو آ سکتی ہے لیکن کبھی نشہ پلٹ کے نہیں آئی۔ تو اگر حضور غوث اعظم کے غلام بنتے ہیں نشے سے توبہ کریں، اٹھنے سے پہلے یہاں سے توبہ کر کے اٹھے کہ اب تک اگر کوئی ایسا گناہ سرزد ہوا ہے اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ حضور غوث اعظم کا وسیلہ دے کر کے، حضور غوث اعظم کا نام لے کر کے اللہ سے آپ معافی طلب کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو معاف فرمائے گا۔ دعا کریں اللہ اس جلسے کو، اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے۔ بس اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ مانا کی زمین کو گلزار نہ کر سکے، کچھ خار تو کم کر گئے گزرے جدھر سے ہم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ سلام پڑھا جائے۔ یا نبی خیر الانام تم پہ کروڑوں سلام، یا نبی خیر الانام تم پہ کروڑوں سلام، ہر گھڑی اور صبح و شام تم پہ کروڑوں سلام، ہر گھڑی اور صبح و شام تم پہ کرو کہ گھر گھر میں یہ کام ہو، فیض نبوی عام ہو، گھر گھر میں یہ کام ہو، فیض نبوی عام ہو، لب پہ ہو تیرا کلام تم پہ کروڑوں سلام، لب پہ ہو تیرا کلام تم پہ کروڑوں سلام، ہر گھڑی اور صبح و شام تم پہ کروڑوں سلام۔ پاس مالو زر نہیں، اڑنے کو بھی پر نہیں، پاس مالو زر نہیں، اڑنے کو بھی پر نہیں، کر دو کوئی انتظام تم پہ کروڑوں سلام، کر دو کوئی انتظام تم پہ کروڑوں سلام، یا نبی خیر الانام تم پہ
صبح و شام تم پہ کرو سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلک و صحابک یا شفیعنا یوم الجزا